ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. مولانا سعید اختر نعیمی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے سعید آفیشیل 40 کو سبسکرائب کریں. میرے بزرگوں، دوستوں، ایمان کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو. یہ اسلام آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا ہے. یہ اسلام ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے یہ صحابہ اکرام نے بہت قربانیاں دی ہے، اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہے، اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے یہ اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے. کیا آپ نے کبھی اس بات پر شکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے؟ کسی نے اس بات کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے اور اس نبی کی امتی میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امتی میں شامل ہونے کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے تھے، فرشتے بھی دعا کرتے تھے. میرے بزرگوں، دوستوں، ایمان ہمارے گھر تک آسانی کے ساتھ نہیں آیا ہے. ایمان ہمارے گھر تک آسانی کے ساتھ نہیں آیا ہے، بلکہ اس اسلام، یہ ایمان ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام کی قربانیاں پیچھے موجود ہے. صحابہ اکرام کی یہ مال و دولت قربانیاں موجود ہے، تب جا کر کے اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے. آج ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین کسی حافظ صاحب کو، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بیٹے کے کان میں اذان پڑھ دیجئے. اذان پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مبارک ہو، آپ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں. حضرات محترم، لیکن آئیے صحابہ اکرام کی قربانیاں جو موجود ہے، اسلام ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں موجود ہے، آئیے ایک واقعہ سماعت فرمائیے. یہ واقعہ سنیں گے تو یقیناً آپ کا کلیجہ دہل جائے گا. حدیث پاک میں ہے، جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں. حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے. اسی جنگ میں مشہور صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے اور اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے. یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اسلام کے غربت کے بارے بتا رہا ہوں. یاد کیجئے کیا ہوا اسلام کی جو غربت ہے، کیسے کیسے اسلام پھیلا ہے. حضرات محترم، کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یہ تمام صحابہ کو دینے کے لیے تو ہمارے پاس اتنا کفن بھی نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے کہتے ہیں، اے زبیر، تمہاری ماں حضرت صفیہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میرے پھوپھی جان، اے زبیر، میرے پھوپھی جان حضرت صفیہ، تمہاری ماں کو جنگ میں جانے مت دینا اور کہہ دینا کہ تمہارے بھائی کو آپ چہرہ نیک دیکھ سکتی، اس لیے آپ دیکھ ہی نہیں سکے گی. اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ ایک موقع پر ایک عورت کی جو بھائی ہے، ان کے شوہر ہے حضرت امیر حمزہ، ان کو قتل کر چکے تھے. تو وہ عورت ٹھان چکی تھی، جب تک امیر حمزہ کو میں ان کے کلیجے کو چباؤں گی نہیں، تب تک میرے دل کو مطمئن نہیں ہوگا. حضرات محترم، وہی عورت کیا کرتی ہے، اسی جنگ کے موقع پر حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چاک کرتے ہیں. ان کے سینے کو چاکنے کے بعد حضرت امیر حمزہ کے کلیجوں کو نکالتے ہیں، ان کو چباتے ہیں، ناک اور کان کو کاٹ کر کے ہار بناتے ہیں اور ہار پہنتی ہے. حضرت امیر حمزہ کی جو لاش ہے ان کو پہچانی نہیں جا رہی تھی. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے زبیر، تمہاری ماں میرے پھوپھی کو جنگ میں آنے مت دینا، جنگ احد میں آنے مت دینا، اس لیے تمہاری ماں اپنے بھائی کے لاش کو دیکھ نہیں سکے گی. حضرت زبیر اپنے ماں کو کہتے ہیں، اے ماں، جنگ میں آپ مت جانا، اس لیے آپ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ ماموں کے چہرے کو آپ نہیں دیکھ سکے گی. تو حضرت امیر حمزہ کی جو بہن حضرت صفیہ کہتی ہیں، چل ہٹ، اس لیے کہ جب امیر حمزہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں. جب امیر حمزہ اسلام کے خاطر اپنے جسم کو قربان کر سکتی ہیں تو حضرت صفیہ بھی اپنے بھائی کو خراج عقیدت پیش کر سکتی ہیں. حضرت صفیہ اس جنگ میں پہنچنے کے بعد اپنے بھائی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اے امیر حمزہ، میرے بھائی، آپ نے محمد عربی کے چچا ہونے کا
सबूत आपने पेश कर दिया। हजरात मोहतरम, फिर क्या हुआ? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया को कहते हैं कफन देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ? हजरत सफिया 2 दुपट्टा कॉटन सूती जिसे कहते हैं, सूती के 2 दुपट्टे हैं, हजरत सफिया अपने भाई अमीर हमजा के लिए लेके आते हैं और लेके आने के बाद अपने भाई को दे देते हैं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी आपने अपने भाई हजरत अमीर हमजा मेरे चचा को आपने दुपट्टा तो दे दिया, लेकिन एक मेरा सहाबी और है। कौन? जिनका नाम हजरत मुसअब बिन उमैर है। ए फूफी, ये मुसअब बिन उमैर ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये मुसअब बिन उमैर बहुत बड़े ताजिर आदमी के बेटे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर, आज मुझे बताइए, आज एक गरीब से गरीब आदमी इंतकाल हो जाते हैं तो उनको क्या देते हैं? 5 कपड़े औरत के लिए जरूर देते हैं और मर्द के लिए 3 कपड़े तो जरूर देते हैं। लेकिन सहाबा इकराम शहीद हो गए, फिर सहाबा इकराम इस्लाम के खातिर शहीद हुए, सहाबा इकराम को देने के लिए कफन तक मौजूद नहीं है। हजरात मोहतरम, फिर क्या हुआ? प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनो, मुसअब बिन उमैर कोई आम शख्स नहीं है, इनके बाप बहुत बड़े ताजिर इंसान है, बहुत मालदार इंसान है। और फूफी सुनिए क्या कहते हैं प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को मुखातिब कर कहते हैं कि सुनो, ये मुसअब बिन उमैर मालदार बाप के मालदार बेटे हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि हजरत मुसअब बिन उमैर, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप बहुत मालदार इंसान थे। उनकी माँ गैर थी, बल्कि बुतों की पूजा करने वाली थी। हजरत मुसअब बिन उमैर के जो वालिदैन हैं बहुत बड़े मालदार इंसान है, बहुत बड़े मालदार इंसान है और उनके एक लौते बेटे हैं और उनको बहुत मोहब्बत से पाले हैं और अपने बेटे को उम्दा से उम्दा मक्के में ऐसे महंगे कपड़े कोई नहीं पहनते थे, उनके वालिदैन उनको पहनाते थे और जो कपड़ा एक मर्तबा पहन लेते फिर दोबारा वो कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं देते उनके वालिदैन। और उनके बेटे, अपने बेटे हजरत मुसअब बिन उमैर को इतने खुशबू, जो खुशबू महंगे, इतने महंगे खुशबू पहनाते थे, जितने महंगे खुशबू पहनाते थे अपने बेटे मुसअब को, इतने महंगे खुशबू मक्के में कोई नहीं लगाते थे। वो खुशबू अपने बेटे को लगाते, इतने महंगे लगाते। और किसी रास्ते से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजर जाते तो मक्के की औरतें समझ जाती कि इधर से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं, उनकी खुशबू सूंघ करके, इसलिए कि इतने खुशबू, ये जो खुशबू इतने महंगे मक्के में कोई नहीं पहनते थे। वो गैर थे, बल्कि मुसलमान नहीं थे। एक मरतबा हजरत मुसअब की जो नज़र है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे व दुआ पर पढ़ते हैं, मेरे नबी के चेहरे पे पढ़ते हैं, तो हजरत मुसअब बिन उमैर नबी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। जब हजरत मुसअब बिन उमैर ईमान की दौलत से मालामाल हो जाते हैं तो घर पहुंचते हैं और उनकी माँ है जो सुनती है कि मेरे बेटे इस्लाम कबूल कर लिए हैं, तो क्या करते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं बेटे इस्लाम धर्म छोड़ दे, इस्लाम धर्म को छोड़ दे। इस्लाम को छोड़ने के लिए उनकी माँ बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि ताकि उनका बेटा अपने बुतों का पूजा करना शुरू कर दे और इस्लाम धर्म को छोड़ दे। हजरात, फिर क्या हुआ? हजरत उमैर से उनकी माँ कहती है बेटे अगर तुमने इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा तो फिर सुनो, इस घर को भी छोड़ दे, मेरे महंगे महंगे कपड़े वो भी छोड़ दे, तो फिर सुनो घर से निकल जा। तुम्हारे बाप ने जो दिया है तुमको पहनने के लिए इतने कपड़े दिए, पैसे दिए, माल दौलत दिए, तुम्हारे अब्बू के दिए हुए रास्ते पे चलो, लेकिन तुमने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और तुमने अपने बुतों की पूजा करना छोड़ दिया, तो सुन घर को छोड़ दे। तो क्या हुआ? हजरत मुसअब बिन उमैर कपड़े को उतार के दे देते हैं, अपनी माँ के कदमों में फेंक देते हैं और कहते हैं लो आपके कपड़े आप ले लीजिए, आपके घर को छोड़ रहा हूँ। आप बताइए उस दीवाने का क्या हाल होगा। हजरत मोहतरम, हजरत मुसअब बिन उमैर जब घर को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं तो चलते चलते घर से बाहर निकलते हैं, मदीने की तरफ रवाना होते हैं, मदीने के रुख करते हैं।
मदीना पहुंचते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये देखो मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं, मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं, ये देखो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने उनका क्या हाल कर दिया है। उसी मुसअब बिन उमैर नबी के मोहब्बत के खातिर, इस्लाम के खातिर घर को छोड़ देते हैं। वो कपड़े, इतने महंगे कपड़े पहनने वाले थे, सब कुछ छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़ने के बाद मदीने की तरफ आते हैं। वही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उसी मुसअब बिन उमैर को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, देने के लिए कपड़े नहीं है। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, अपने फूफी से कहते हैं, प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फूफी से कहते हैं, ऐ मेरे फूफी, आपने तो अपने भाई को 2 कपड़े लाए थे, 2 दुपट्टा लेके आए थे, आपने अपने भाई को तो दे चुके, लेकिन उनमें से आपकी इजाज़त हो तो उनमें से एक दुपट्टा मेरे मुसअब को भी दे दें। तो फिर क्या हुआ, हज़रत सफ़िया फरमाती है, या रसूलल्लाह, मैंने आपको दोनों दुपट्टे आपके हवाले कर दिए, आप जिसको चाहे दे सकते हैं। उनमें से एक दुपट्टा हज़रत सफ़िया के भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा को देते हैं और उनमें से एक दुपट्टा हज़रत मुसअब बिन उमैर को देते हैं। हज़रात मोहतरम, तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये चादर कम पड़ गए हैं, चादर घट गए हैं, या रसूलल्लाह, ये चादर इतने छोटे पड़ गए हैं, अगर चेहरे की तरफ ढक रहे हैं, पीछे पैर नंगे हो रहे हैं, या रसूलल्लाह, अगर पैर की तरफ ढक रहे हैं तो फिर सर नंगा हो रहा है, या रसूलल्लाह, क्या किया जाए। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, वो दुपट्टे को चेहरे की तरफ से, सर की तरफ से ढक दो और पैरों पर घास डाल दो, पैरों पर घास डाल दो। हजरात, अब मुझे बताइए, इस्लाम के खातिर सहाबा इकराम शहीद हुए और उन लोगों को कफन भी नहीं मिला, उन लोगों को देने के लिए कफन भी नहीं मौजूद है। हजरात बताइए, सहाबा इकराम इस्लाम के खातिर क्या करते हैं, उनको कफन भी नहीं दिए जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। मुसलमानों, ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। सहाबा इकराम को देने के लिए कफन भी मौजूद नहीं है, सहाबा इकराम के पैरों पे घास डाल देते हैं। अब सोचिए तो सही, वो सहाबा इकराम जो इस्लाम के खातिर अपने जान और माल को कुर्बान कर दिए, वो इस्लाम के खातिर अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिए, आज हम लोग ऐसे में बैठ करके नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सहाबा इतनी परेशानियों का सामना करके नमाजों को नहीं छोड़ते थे। सहाबा इकराम इतनी परेशानियों का सामना करते फिर भी नमाज नहीं छोड़ते, लेकिन आज हम लोग ऐसियों में बैठकर भी नमाजों को छोड़ रहे हैं। अब बताइए, सहाबा इकराम इस्लाम के खातिर अपने जान और माल को कुर्बान कर दिए, क्या कोई ऐसा मोहब्बत इस्लाम के खातिर कोई पेश कर सकता है? कोई हरगिज कोई पेश नहीं कर सकता, हरगिज कोई पेश ही नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, अपने ईमान की कदर करें। इस्लाम अल्लाह ने हम लोगों को तो बिना मांगे मिला है, लेकिन सहाबा इकराम इस्लाम ईमान की कितनी कदर करते थे। और याद रखना, ये ईमान का ताल्लुक काले घोड़े से नहीं है, बल्कि ईमान का ताल्लुक जन्नत और दोज़ख से है। ईमान का ताल्लुक जन्नत और दोज़ख से है। और याद रखना, अगर आपके पास ईमान है, इंशाअल्लाह आप बख्श दिए जाओगे। अगर आप ईमान सलामत नहीं लेके जाओगे तो फिर याद रखना तुम्हारा हाल क्या होगा। लेकिन याद रखो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, जबकि फिरौन काफिर मलऊन की बीवी जन्नत में जाएगी, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम उलुल पैगंबर है, उनके पास, उनकी बीवी के पास ईमान मौजूद नहीं है। और फिरौन की बीवी, उनके पास ईमान मौजूद है, तो वह जन्नत में जाएगी। इसलिए ईमान किसी काले घोड़े से ताल्लुक नहीं रखती है, बल्कि ईमान का ताल्लुक बल्कि जन्नत और दोज़ख से है। इसलिए ईमान की हिफाजत करें, ईमान की कदर करें।